understand about all these concepts with the help of the concept note that I shared with you all. Here is the concept note. Please understand that every now and then, in every part of our life, we are using oral presentation. For example, when your teacher asks a question, do you remember what was explained to you yesterday? And when you stand up and when you present the information in front of your class fellow mates as well as in front of your teacher, what are you doing? You are giving an oral presentation. कई बार लोगों को ये वर्ड प्रेजेंटेशन सुनकर ऐसा लगता है एक पावर पॉइंट होगा, एक प्रोजेक्टर होगा, एक लैपटॉप या एक डेस्कटॉप होगा और स्लाइड्स को रीड करते जाएंगे, वो प्रेजेंटेशन होता है. This thought is wrong. You are living in a myth if you consider it as a presentation. Presentation होता कब है? When you are sharing your thoughts and presenting your ideas to convince the audience. Now, this could be used for official purposes as well as for your personal purpose. It's not compulsory that presentation is to be used only for managing the business. ये हम अपने आम दिनचर्या में हर दिन प्राय यूज करते हैं. लोगों का मिथ है प्रेजेंटेशन कहते ही कि एक प्रोजेक्टर होगा, एक प्रेजेंटेशन होगा जिसको मैं रीड करूंगा और वही प्रेजेंटेशन कहलाएगा. ये गलत धारणा है बेटा, इस धारणा से दूर हटकर आना है. प्रेजेंटेशन होता क्या है? यू आर गोइंग टू प्रेजेंट सर्टेन फैक्ट्स इन फ्रंट ऑफ द ऑडियंस सो दैट यू कैन एंगेज योर ऑडियंस. दैट इज द रीजन व्हेन वी डिस्कस अबाउट द डिफरेंट टाइप्स. The types are, we can be talking about manuscript. What is manuscript? जैसे अभी ये पूरा का पूरा डॉक्यूमेंट 6 पन्नों में लिखा हुआ है. इसे देखकर आपको मैं एक्सप्लेन कर रही हूं. This is manuscript. इसके अलावा होता है रोल प्ले. जब आपको कोई एक तरह का रोल दे दिया जाता है और उसके अकॉर्डिंगली आपसे कहा जाता है अब आप बताइए कि इस रोल के हिसाब से आपको क्या बताना है, क्या बोलना है. फॉर एग्जाम्पल, इफ यू बिकम द प्रिंसिपल ऑफ ISM, सो व्हाट आर यू गोइंग टू डू इन ऑर्डर टू generate interest among the students to enter the class or to attend the class. तो वहां पर आपने क्या किया? अपना रोल को डिफाइन कर दिया. I as a principal. अब आपका सोच कैसे हो जाएगा? प्रिंसिपल कैसे जैसे सोचना होगा. So therefore that is called as role play. The third is extempore. Extempore is something wherein we believe you have some piece of information stored in your memory box. You have great command and knowledge related to a particular topic and you detail that topic, you explain that topic in front of the audience. इसे extempore कहा गया है. उसके बाद लास्ट होता है impromptu. Impromptu क्या है? तुरंत के तुरंत जैसे ही टॉपिक दिया जाए, बिना प्रैक्टिस टाइम दिए, बिना किसी प्रिपरेशन के, आपको अगर ऑन द स्पॉट कहा जाए उस टॉपिक पर बताइए, प्रेजेंट कीजिए, जाहिर कीजिए अपने ओपिनियन और पॉइंट्स को. दैट इज कॉल्ड एज इम्प्रॉम्प्टू. प्लीज कीप दिस इन योर माइंड. दिस पॉइंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और ये अगर आप एक अच्छा मैनेजर बनना चाह रहे हैं तो इसको जरूर ध्यान में रखिए. अ प्रेजेंटेशन रिक्वायर्स प्रॉपर प्रिपरेशन before you render the message to the listener. कितने लोगों को 4P का रूल याद है? I would like to see how many of you remember the 4 P's that we have discussed many a time. Okay, Ananta, can you quickly write down all the 4 P's? What does what do we understand by the 4 P's? What does each P represent? Yes, can I get the information in the chat box? Very good, excellent, Ananta. But yes, you had mistaken at a point. It is plan, prepare, practice and present. Place नहीं है. 4 P's marketing के different है. यहाँ पर जो हम बात कर रहे हैं उसे 4 P's में plan, prepare, practice and present. Very good Pintu and very good Aradhana. So please understand dear, जितने भी students हैं, अगर कल के दिन आप business plan present करने जा रहे हैं, अगर आप interview में बैठ रहे हैं, GD में बैठ रहे हैं, किसी भी तरह का अगर ऐसा माहौल है जहां पर आपको बोलना पड़े, घर में भी ऐसे कई जगह पर कई इंस्टेंसेस होते हैं जहां पर आपको बोलना पड़ता है. जब आप बोलते हैं बिना प्लानिंग के अगर आप बोलो, क्या हो जाएगा?
आप जो बोल रहे हो लोगों को आपकी बातें ठीक तरीके से समझ में नहीं आएगा, शायद वो आपके बातों से डिसअग्री करे। इसीलिए लोग कहते हैं बहुत अच्छे कम्युनिकेटर्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, पहले प्लान करते हैं, अपने टॉपिक को प्रिपेयर करते हैं, उसके अकॉर्डिंगली प्रैक्टिस भी करते हैं, और फिर फाइनल में होता है प्रेजेंटेशन। जो लोग इस कॉन्सेप्ट को क्लियरली समझ ले कि मुझे पहले प्लान करना है, फिर प्रिपेयर करना है, फिर प्रैक्टिस कर कर प्रेजेंट करना है, वो हमेशा बहुत अच्छे कम्युनिकेटर्स बनकर उभरते हैं। इसीलिए हमेशा याद रखें, जब भी आप प्लान करें, प्लानिंग के टाइम पर क्या क्या सोचना चाहिए। When and where will you deliver your presentation? This is the first concept. The concept that should click to your mind, the idea that should run in your mind, stating that where and when, कब और कहाँ मैं presentation देने जा रहा हूँ. Are you really familiar with the setting, or is it a new place? Many a times it happens that you may be giving a presentation for the first time and it's completely a new place. You don't know about the interiors, whether it is going to be a big auditorium, or will that be a meeting room, or will that be a cubicle. You don't know about the sitting arrangement. So therefore you should be familiar with the settings. You should also be familiar with the audience, who the audience is. If you know about your audience, you can do the preparation at a better way, and at the better cost of knowing what exactly the audiences are thinking, planning, and then accordingly you can execute your thought or plan of action. आर्टिकुलेशन बढ़िया हो जाता है जब आपने अपने ऑडियंस के बारे में अच्छे से पता कर लिया. Also understand, will the presentation be within a formal setting or will it that be informal setting? That is the reason. Always remember, it's not necessary that every presentation is meant for business. It can be even informal way of presentation. Say for example, you are celebrating your birthday party. You're going to call the different guests. Where are you going to make them sit? Are you going to make them stand for the whole party or till the end of the event? So you have to keep lot many things in your mind. So formal or informal, know about it. Know the number of people who will be witnessing your presentation. Is that a large group of audience which is going to hear to you, or will that be a small group? What are the equipments and technologies that would be available with you? कई बार हम पीपीटी बना तो लेते हैं और हमारे प्रेजेंटेशन को हम लोग या तो अपने लैपटॉप पर या पेन ड्राइव में कैरी कर लेते हैं, आज के डेट में मोबाइल पर भी. लेकिन बाद में पता चलता है कि जहां पर हम जा रहे हैं प्रेजेंटेशन देने के लिए, वहां तो प्रोजेक्टर है ही नहीं, वहां पर माइक सिस्टम तो है ही नहीं. तो उस जगह पर आप अगर प्रिपरेशन पहले से ही सोच समझकर नहीं करते तो वहां पर बहुत ज्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है. ऑल्सो नो व्हाट इज द एक्सपेक्टेशन ऑफ द ऑडियंस. अगर इसको प्लानिंग में डाल देते हैं, प्लानिंग फेज हो जाने के बाद आप प्रिपेयर करना शुरू करोगे. प्रिपरेशन में किन चीजों का ध्यान रखना है? टू कीप दैट इन योर माइंड, ऑर्गेनाइज योर थॉट्स. You should always plan what to start first, how to start first, how to continue, and how to end. After planning, then becomes the execution part. In the execution segment, organize your thought, organize the subject matter that you are willing to present. For example, organize का मतलब क्या होता है? जो जिस ऑर्डर में है उसको उसी ऑर्डर में बताना चाहिए. एक सिंपल सा एग्जाम्पल, 1 2 3 4 5. ये अगर 5 पॉइंट्स है, इन 5 पॉइंट्स को मुझे अगर प्रेजेंट करना है, 1 के पोजीशन में होना चाहिए, फॉलोड बाय 2, देन 3, देन 4 एंड फाइनली कंक्लूडेड बाय 5. अगर मैंने 5 को पहले, 3 को बाद में, 2 को बीच में, 1 को उसके बाद और 4 को कंक्लूजन बना दिया, तो ये लोगों को सुनने में भी ठीक से समझ में नहीं आएगा और आप में भी कॉन्फिडेंस लेवल हाई नहीं होगा. सो ऑर्गेनाइज योर प्रेजेंटेशन. विजुअलाइज. व्हाट डू वी आइडेंटिफाई बाय द वर्ड विजुअलाइज? पहले से प्रिपेयर करो अपने माइंड को कि सामने मेरा ऑडियंस बैठा है, उसके सामने मैं प्रेजेंटेशन दे रहा हूं और वो क्या सोच रहे होंगे मेरे प्रेजेंटेशन को सुनकर. उनके दिमाग में किस तरह के क्वेश्चंस आएंगे जिसको मैं आंसर कैसे दूंगा. प्रैक्टिस. Breathe properly. Always remember, everybody will be nervous.
Unless and until you're not going to become a seasoned player, you all tend to become nervous. And then the confidence will be replaced by hesitation. If you see or if you can feel that your confidence is turning low and you are turning to become bit hesitant, do the small breathing exercise. When we are doing the small breathing exercise, how are we going to engage the audience? By asking a question. All right, what are they expecting from the presentation? और वो जब तक आंसर देंगे आप आराम से अपना ब्रीथिंग एक्सरसाइज कर सकते हैं. We are not asking you to breathe out loud and blow the air in and out very rapidly or very quickly or rigorously. Always remember, when you are doing the breathing exercise, focus on your breath. आपने सांस कितना अंदर लिया है और कितना बाहर किया है. This is called as know about your breath. Completely tend to relax your body, tend to relax yourself, and then move here and there to have a word, to have a discussion. Develop an eye contact with the audience and ask certain question and answer. When you start doing this, certainly you are going to develop great level of confidence. What are the steps that we have to keep in our mind? Brainstorm the idea. That is what the the first P stand for. Write the important ideas. ऐसा जरूरी नहीं है कि जब भी आप प्लान करते हैं तो सिर्फ एक ही आइडिया आता है. कई सारे आइडियाज आते हैं. उन कई सारे आइडियाज में मेन आइडिया को फोकस करते हुए उससे रिलेटेड पॉइंट्स, सब पॉइंट्स, कीवर्ड्स के तौर पर लिखना चाहिए. आई रिपीट, जो मेन आइडिया है उससे रिलेटेड मेन पॉइंट, अदर मेन पॉइंट्स, सब पॉइंट और उसके अंदर के सब पॉइंट्स, इन सबको हमें चार्ट आउट कर लिख लेना चाहिए. उसके बाद लोगों को आपके प्रेजेंटेशन से मिलने वाले बेनिफिट्स, इसको आप हाईलाइट करते हुए ऑडियंस को इसी से स्टार्ट करेंगे. अगर आपने बेनिफिट्स बताते हुए स्टार्ट किया, क्या होने वाला है? द ऑडियंस विल बी वेरी हैप्पी. द ऑडियंस विल फील दैट वाओ, दिस इज व्हाट आई वाज नॉट नोइंग. ये चीज ऐसा है जो मुझे पहले से पता नहीं था और ये पहली बार मुझे सुनने को मिला है, या पता था लेकिन मुझे इतना ज्यादा नॉलेज और इंफॉर्मेशन नहीं है. कई जगह पर जब प्रेजेंटेशन के लिए आपके पास कोई टेक्नोलॉजी और इक्विपमेंट नहीं है तो बेस्ट तरीका होता है हैंडआउट का. हैंडआउट्स को अगर आप 4 से 5 कॉपी निकालकर टीम में लोगों को, ऑडियंस को अगर बांट दे तो वो आपसे बहुत अच्छे तरीके से कनेक्ट कर सकते हैं. In case you are using the technology and you are showing the visual aids through PowerPoint, charts or graph, always understand that this will help the audience to get connected with your thought process very easily and in a better way. हमेशा मेन पॉइंट के पीछे ही इर्द गिर्द होना चाहिए, ऑफ ट्रैक नहीं होना है. यू कैन नॉट डीरेल योरसेल्फ. कई बार ऐसा होता है हम बातों में इतने बह जाते हैं कि हमें याद ही नहीं रहता कि हमारा मेन पर्पस या मेन आइडिया फ्रेम क्या था. तो हमेशा याद रखें, मेन आइडिया के बाहर इधर उधर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि लोगों को आपने उसी टॉपिक को सुनने के लिए बुला रखा है. एंड प्लीज conclude with certain call of action. What is that call of action? You should always make people feel that I'm ready to answer to your question. I'm here to make you people understand what you people are here willing to learn from me. So हमेशा याद रखें, जब भी आप किसी भी तरह का प्रेजेंटेशन दें, चाहे वो मैन्यूस्क्रिप्ट रीड कर रहे हैं या रोल प्ले दे रहे हैं या एक्सटेम्पोर प्रेजेंट कर रहे हैं या इम्प्रॉम्प्टू, you should always remember इंट्रोडक्शन अच्छा होना चाहिए. आप अपने सेंटेंसेस को प्रॉपर से परव्यू कर ले, उसका प्रीव्यू अच्छे से आपके दिमाग में होना चाहिए. मेन आइडिया, सब आइडियाज प्रॉपरली आइडेंटिफाइड होना चाहिए. इन्हीं को आप एलैबोरेट करोगे अपने स्पीच के दौरान, ये याद रखना है. बेनिफिट्स आइडेंटिफाई कीजिए, अपने सेंटेंस को रिवाइज कीजिए और फिर कंक्लूड करना है. बॉडी लैंग्वेज एक प्रेजेंटर का कैसा होना चाहिए? पोस्चर. लेक्टर्न के पीछे खड़े होकर जो भी प्रेजेंटेशंस देते हैं, people, they are hiding their body and audience cannot observe your body and that is creating disconnect. हमेशा याद रखें, इसीलिए लेक्टर्न के पीछे जो हमारे ऑडिटोरियम में
बड़ा सा पोडियम है, आपने देखा होगा, वो लकड़ी का बना है, आपके बॉडी लैंग्वेज को वो एब्सोल्युटली क्या कर देता है, ब्लॉक, जिससे ऑडियंस देख ही नहीं पाता कि आप कैसे जेस्चर्स बना रहे हैं, आपका स्टैंडिंग पोस्चर क्या है, आप क्या एनर्जेटिक है या नहीं है। क्योंकि कई बार हम वॉइस मॉड्यूलेशंस पर ध्यान नहीं देते, हमारा फेस का एक्सप्रेशन भी फ्लैट होता है। अगर हमारा फेशियल एक्सप्रेशन फ्लैट ना हो, अगर आपको अपना वॉइस को प्रॉपरली मॉड्यूलेट करना आता हो, तो आप देखोगे कि आप अगर लेक्टर्न के पीछे भी हो तो भी आप बहुत अच्छे से कनेक्ट कर पाओगे। प्लीज ये याद रखना, अगर वहां पर लेक्टर्न या कोई ऐसा चीज ना हो खड़े होने के लिए, आपका मूवमेंट सिर्फ सामने में होना चाहिए। कई लोग क्या करते हैं, फर्स्ट रो को छोड़कर पीछे 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 चले जाते हैं। what happens, you are getting disconnected with the audience who are sitting in front. So therefore, avoid too frequent movements. Gesture, yesterday Prerna was asking, ma'am, what are gestures? The hand movements that we do in order to animate, in order to depict our thoughts and ideas, that is called as gesture. For example, अभी मैं अगर कहूँ बिना बोले मुझे बताओ नो नो, तो आप बता सकते हो, कैसे बताओगे, आप हाथ से मूव करोगे। what are you doing, you are doing a kind of gesture. When a teacher is taking a class and you have entered the class bit late at 9:45 and you want to say hi to your friend, you can either do the lip sync or you just wave your hand. What are you doing? You're doing the eye gesture. Again, eye contact, very important. Voice modulation, I already stated this dear. Please understand, fluency का मतलब ये नहीं होता कि आप बहुत तेज, बहुत ही ज्यादा तेज बात करें। फ्लुएंसी ये कभी नहीं होता। सो इफ यू आर टॉकिंग अबाउट फ्लुएंसी, प्लीज कीप दिस इन योर माइंड। फ्लुएंसी का मतलब ये होता है, मैंने जो शब्द और स्टेटमेंट कहा है, ऑडियंस को क्या वो सही तरीके से सुनाई दिया, समझ में आया या नहीं। जब आप लोग दोबारा से क्वेश्चन करते हैं, मेरा सबसे पहला क्वेश्चन होता है, आर यू देयर, आर यू लिसनिंग टू मी और नॉट। क्यों? क्योंकि मुझे लगता है मेरा फ्लुएंसी ब्रेक हो रहा है। मेरे में प्रॉब्लम हो भी सकता है या नहीं भी, लेकिन अगर ऑडियंस का माइंड कहीं और है, अगर ऑडियंस किसी और चीज में इंडल्ज है, तो ऑटोमेटिकली आप देखोगे कितना भी अच्छा प्रेजेंटर का ऑडियंस उससे कनेक्ट नहीं हो पाएगा। So in the conclusion, you should always remember that ask questions time and again. बीच बीच में क्वेश्चंस पूछते रहना चाहिए, जिससे आपको पता चल सके कि क्या ऑडियंस आपको वाकई में सुन भी रहा है या नहीं। Finally, there are certain guidelines that we have to follow in case if we are using PowerPoint presentation. The thumb rule is 7:7. इसे कहीं ना कहीं नोट जरूर कर लो बेटा। 7:7 का मतलब होता है एक स्लाइड पर 7 लाइन से ज्यादा स्टेटमेंट्स नहीं लिखना चाहिए, और एक लाइन में 7 कीवर्ड से ज्यादा कीवर्ड्स का यूज नहीं होना चाहिए। इसीलिए जब भी आप प्रेजेंटेशन बनाएं, हाईलाइट कीजिए बुलेट पॉइंट्स को, हाईलाइट कीजिए कीवर्ड्स को। कंप्लीट सेंटेंस लिखने के बजाय अगर आपने शब्दों का प्रयोग किया, तो उसे ऑडियंस ध्यान से देखेगा और आपकी बातों को सुनेगा। आपकी बातों को क्यों सुन रहा है? Because you are explaining all the key points that you have mentioned on the slide. Avoid using jargons. Avoid using unnecessary animated noise. Use only those terminologies which are very common, easy to understand. Don't prove yourself as a very strong, commanding person in communication. If you are using unfamiliar words during the communication, what is going to happen? The audience will not be able to understand exactly the statement that you want to deliver. और वो फिर क्या हो जाएगा? Audience आपके साथ disconnected हो जाएगा. So please keep this in your mind. No jargons. Do not use unfamiliar words. And even the terminologies that you're using, it should be the common, the day-to-day usage words. प्रूफ रीड योर प्रेजेंटेशन। स्पेलिंग एरर्स नहीं होना चाहिए, सेंटेंस का फॉर्मेशन में ग्रामेटिकल एरर नहीं होना चाहिए, रिपीटिशन ऑफ सेंटेंस भी नहीं होना चाहिए। द फॉन्ट साइज
should be absolutely clear and visible from every corner of the room. The font size generally that is used in on slides are 36 for heading, 32 for subheading, 36 and 32. Then comes the slide when you are presenting your points. It should be 32 or 28. Don't make it smaller than 24 in any case. If it is smaller than 24, it would be very difficult for the audience to read the text. So please understand, it should be properly readable, properly visible, size should be clear, the line should be bolded, color that you are using, अगर background dark है तो light fonts, अगर background light है तो dark font, ये याद रखेंगे. Don't try to use textures, colors, क्योंकि जब हम presentation को अपने लैपटॉप पर बनाते हैं तो हमारे लैपटॉप का जो कैमरा पिक्सल है वो बहुत ही अच्छा होता है, जैसे हमें प्रेजेंटेशन व्यू करने में भी बड़ा सुंदर लगता है. बट व्हेन यू आर प्रेजेंटिंग द सेम ऑन बिग स्क्रीन where the pixels are breaking or they are getting toned, then at that time you will find it very difficult for the audience to visualize the things properly. So don't forget that checking all these common things are very, very important wherever you are going to give the presentation. And please check and recheck the texture and the content that you have prepared. If you do that, certainly it is going to help you. I'll stop for a minute and I would like to ask from you all if you have any doubts related to the oral presentation. Don't hesitate in asking, because this is very, very important from the point of view of your studies, from the point of view of your course, because everybody is going to definitely become a manager. And when you are turning as a manager of an organization, every organization believes that their personnel, whosoever is going to present, their member of management or the manager should be able to present properly. Expectations का मतलब होता है मुझे आइडिया बनाते समय मेरे दिमाग में जो आइडिया आ रहा है उस आइडिया में मैं क्या डालूं और क्या ना डालूं. प्लानिंग का जो फेज होता है उसे एक्सपेक्टेशन कहा जाता है. प्रेरणा, एक्सपेक्टेशन किन किन के पॉइंट ऑफ व्यू से? दो लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो प्रेजेंट करने जा रहा है उससे भी और जो सुनने आ रहा है उनका भी. इन दोनों को ध्यान में रखते हुए प्लान, प्रिपेयर, प्रैक्टिस, प्रेजेंट. Did I clear your doubt, प्रेरणा? Please understand here, expectations का मतलब होता है लोग आपसे क्या उम्मीद लगा कर है. आपको अगर पता चल जाए कि लोगों का क्या उम्मीद है, आपसे वो क्या सुनने के लिए चाह रहा है, आप उसी के अकॉर्डिंग वहां पर प्रेजेंट करोगे. All right? So, in case if you have any other doubts, please ask. मोहिनी, हैंडआउट का मतलब वो होता है बेटा, आपने अगर अपना प्रेजेंटेशन प्रिंट करवाकर ऑडियंस से शेयर किया, उसे हैंडआउट कहा गया है. ठीक है ना? हैंडआउट का मतलब प्रिंटेड डॉक्यूमेंट. वो प्रेजेंटेशन का भी हो सकता है. जो प्रेजेंटेशन आपने बनाया है, अगर आप उसे प्रिंट कर कर लोगों को देते हैं, उसे प्रेजेंटेशन को हैंडआउट कहा गया. एकेडमिक में ओरल प्रेजेंटेशन प्रेरणा हम लोग डे 1 से स्टार्ट करते. मुझे याद है अभी भी आप लोगों का फर्स्ट क्लास जो मेरा क्लास था, मैंने 8 बच्चों को जो लेट से आए थे उन लोगों को खड़ा कर कर कहा था इंट्रोड्यूस योरसेल्फ. अगर आपको याद हो, वहां पर आप लोगों ने खुद का इंट्रोडक्शन दिया था. व्हाट वर यू डूइंग? यू वर गिविंग योर प्रेजेंटेशन. सो presentation is used everywhere. The moment you enter into your classroom, for the first time, जो फ्रेंड आपके बगल में बैठे थे, आप उनसे पूछते हैं, हाय, आपका नाम क्या है, आप कहाँ से स्कूलिंग किए, और अपने बारे में आप बताते हैं. What are you doing? You are giving your oral presentation. So, academics में oral presentation वाइवा में काम आता है. इंटरनल असेसमेंट्स जब आपको प्रेजेंटेशन देते हुए टीचर्स कहते हैं कि मैं आपको असेस करूंगा या करूंगी, तब काम आता है.
इसके साथ साथ आप जब भी कोई भी क्वेश्चन करते हैं और टीचर उस आंसर को, जब टीचर अपने आंसर को प्रेजेंट करता है और जिसे सुनकर आपको लगता है कि ये नॉलेज मेरे लिए इंपॉर्टेंट है और आप उसे मेमोरी बॉक्स में कैप्चर कर लेते हैं, वो सारा ओरल प्रेजेंटेशन है। जो टीचर अभी क्लास में डिलीवर कर रही है लेक्चर, वो किस तरह का है? वो ओरल प्रेजेंटेशन ही तो है, ठीक है ना? हाँ, अगर प्रेजेंटेशन देते समय लोगों को कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी ना हो या कॉन्सेप्ट याद रखने में दिक्कत हो रही हो, तब वो स्लाइड को रीड करते हैं या स्लाइड से कीवर्ड्स को देखकर अपना एक्सप्लेनेशन देना शुरू करते हैं। आई होप आई क्लियर्ड योर डाउट डियर। ओके, फॉर ओरल प्रेजेंटेशन, just very simple, it's presentation. All right, it in general we call it as presentation. We exclude the word oral. हम इसमें से oral word हटा देते हैं, presentation बोलते हैं, ठीक है ना? हाँ, what is the difference between speaking and presentation? Speaking can be done without planning. Speaking can be done without preparation. Speaking may not require practice to present, but presentation will definitely have all these 4 P's. In case if you are asking me the question, ma'am, क्या speaking में 4 P's को apply करना चाहिए? A good speaker will always plan, prepare, practice his thought very quickly in his mind, and then will present. I want you to listen to the speeches of APJ Abdul Kalam. He was a great orator. He always had the habit of coming up with his own ideas and thoughts. But do you think when that idea comes in his mind or clicks to his mind, will he not think? He will think. जब वो स्कूल स्टूडेंट के पास होते हैं, उनके एग्जाम्पल्स बदल जाते हैं। वही क्वेश्चन जब उनसे यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट पूछता है, तो उनके स्टेटमेंट्स, उनके आंसर्स, उनका एग्जाम्पल सारा कुछ बदल जाता है। सो प्लीज अंडरस्टैंड, अगर एक गुड कम्युनिकेटर बनना है, तब हमें 4P का प्रिंसिपल हमेशा ध्यान रखना है। लेकिन अगर कॉलेज में प्रेजेंटेशन देना है, तो हमेशा 4P's को भूलना नहीं चाहिए, इसे हमेशा याद रखना चाहिए। इसके बाद का जो नेक्स्ट टॉपिक है, इन्फोग्राफिक, आई बिलीव सभी ने इस डॉक्यूमेंट को अच्छे से समझ लिया है। इन्फोग्राफिक्स आर यूज्ड इन ऑर्डर टू कन्वर्ट योर टेक्स्ट into different charts. This is called as hierarchical chart. The next one is the flow chart. Please remember, the percentages and the tables can also be used. There can be pie chart, there can be histogram, can be the bar graph, can be the line graph. Here are certain examples. इसी का example है ये histogram, ठीक है ना? Line graph, I hope you all know what are line graphs, what are scattered dots and all. Now, I would like to sum up by letting you all the benefits of infographic. If we have a huge text to present to others, it would be very difficult for us or for the audience to recall what exactly the presenter is trying to convey. If the same text is converted into infographic, what will happen? At a glance, एक लुक में आपको पता चल जाएगा कि क्या प्रेजेंट हो रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल, अभी आप ही के सामने ये एक लाइन ग्राफ है। यहाँ पर जनवरी से लेकर जुलाई के मंथ में टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्शन ऑफ एनी ऑफ द प्रोडक्ट, अगर ये मैं कहूं, तो क्या आप बता सकते हैं क्विकली इन द चैट बॉक्स कि सबसे ज्यादा प्रोडक्शन किस महीने में हुआ है और कितना क्वांटिटी में हुआ है? क्विकली। वेरी गुड अनंता, यस इट इज जुलाई, प्रोबेबली आरफ 8 और 9 के बीच, राइटली स्टेटेड हियर। और सबसे कम कब हुआ है? सबसे कम कब हुआ है? और किस महीना में 5.5 से लेकर 6 के बीच में रहा है? 5.5 से लेकर 6 के बीच में किस महीना में रहा है? और किस महीना में 6.5 से लेकर 7 के बीच में रहा है? 6 से लेकर 7 के बीच में। सो आप देखो, एक छोटा सा पिक्चर है वहां पर दिया हुआ, लेकिन ये सारा चीज आप डिपिक्ट कर पा रहे हैं। हाउ आर यू एबल टू आइडेंटिफाई? जस्ट विद द हेल्प ऑफ ग्राफ। सो graphs are very
easy to understand, they are appealing. ऑडियंस को बहुत ज्यादा टेक्स्ट याद रह भी सकता है, नहीं भी, लेकिन ये बहुत ही क्विकली ऑडियंस को अपील करता है. अपील का मतलब होता है उनको लाइक में ले आता है. अगर आपकी बातों से वो असहमत थे, लेकिन अगर आपने टेबल्स, चार्ट, ग्राफ और बार ग्राफ्स और कोई भी किसी भी तरह का इंफोग्राफिक विजुअल्स का यूज किया, तो आपके बातों से वो असहमत होने के बजाय सोचेंगे कि क्या आपकी बातों को नकार दिया जाए या आपको बातों को सुना जाए. Infographics are also very helpful for the other people like stakeholders, shareholders. They'll get to know about the benefits very soon, very quickly. It is again eye catching. It can also be foolproof. Text में कई बार गड़बड़ हो सकता है, infographics में गड़बड़ होने का बात नहीं है. So with this note, I conclude my today's session. I hope that everybody had gone through and understood the topic. In case if you have any doubt, I would like to take up the queries and clear your doubts. Thank you for listening to my session and the class on oral presentation and use of infographic so patiently.